Good morning, student. I, Kinnari Dave, welcomes you all for the Standard 11, Unit 2, Structure of Atom, Part 13. Student, in this part, I am going to explain you about the dual behavior of electromagnetic radiation. As you know, from the study of behavior of light, the scientists came to the conclusion that the light and the other electromagnetic radiation have dual nature, and these are wave nature as well as the particle nature. So here student, you are able to see the dual nature of the light. This is the particle nature and this is the wave nature, and it displays particle like properties in contrast to the wave-like properties, means interference and diffraction, and which it exhibits when it propagates. Means student, यहाँ पर साइंटिस्ट का मानना ये था कि ये जब प्रोपोगेट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब प्रोपोगेट करते हैं, मूव करते हैं, तो उसकी ये दोनों प्रॉपर्टी से वो मूवमेंट कर रहे हैं, एंड उसी तरह से उन्होंने ये ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सेप्ट किया था. But some microscopic particle like electron also exhibit this wave particle duality. यहाँ पर एक वो बात थी कि माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में ड्यूअल नेचर का कहीं ना कहीं confusion था. So student, in this part you are come to know with the microscopic particle like electron also cause a wave and a particle nature both. So student, what is the meaning of dual nature? The earliest view of light due to the Newton regarding light as made up of particle. The particle nature of light explains some of the experimental fact, that is reflection and refraction of light. Student, reflection and refraction इसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. Actually this you have already studied in standard 10. Reflection means what student? याद आ गया स्टूडेंट आपको? रिफ्लैक्शन के बारे में आप स्टैंडर्ड 10 में पढ़ के आए हो. तो रिफ्लैक्शन मीन्स स्टूडेंट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है और वो लाइट रिफ्लैक्ट होके जब हमारी आंखों पे आती है, then and then only you are going to see that object through that retina. The picture of that object comes into our eyes, and that is in the इन्वर्टेड पोजीशन, उल्टी पोजीशन में होती है. सो यू आर गोइंग टू एबल टू सी द इमेज और ऑब्जेक्ट is clearly. That is the reflection. And what is the meaning of refraction, student? Okay student, very good. Refraction also you have remember. Refraction का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि आप अगर पानी में यहाँ पर ऊपर से कुछ देखते हो, कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर गिरा है और वो ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर से देखते हो तो वो ऑब्जेक्ट की डेप्थ जो है एग्जैक्टली यू आर नॉट एबल टू मेजर. स्विमिंग पूल में जाते हैं स्टूडेंट, तो स्विमिंग पूल में ऊपर यहाँ पर खड़े खड़े आप उसकी डेप्थ कितनी है वो देखने की कोशिश करोगे तो यू थिंक दैट अरे ये तो इतना ही ऊंडा है, मैं तो इधर ऐसे खड़े रह के भी अंदर से ये निकाल सकता हूँ.
So that is the refraction. One more example if I'll give you for the refraction, then student, एक glass of water है, वो glass of water में if you are keeping the pencil, this is the glass of water which is filled with the water. This glass is filled with water, and here you are keeping the pencil in it. So when you able to see this pencil from the upper side, the pencil here, you can see this pencil is not a continuous. This is the broken pencil. You feel that way when you are going to see the pencil from the this upper side. So why this is happening, student? Because here it is a air medium and here it is a water medium. So when the ray of light just pass from one medium to another medium, it reflect or it change its direction. We say that it change its direction, and that phenomena is known as the refraction. So here also this two phenomena occurs, reflection and refraction, but it failed to explain the phenomena of interference and diffraction. अब ये स्टूडेंट इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन क्या है उसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने आपको ये पिक्चर दिखाया है और एक ये पिक्चर यहाँ पर भी है स्टूडेंट। ये इमेजिन करो कि आप यहाँ पर खड़े हो और ये जो फिशिंग कर रहे हैं और आप इसके अंदर स्टोन डाल रहे हो। ये पानी का तालाब भरा हुआ है जिसके अंदर पानी अच्छे से स्टेगनेंट वाटर है, उसमें से ये यहाँ पर खड़े खड़े फिशिंग कर रहा है। अब जब वो फिशिंग रॉड पानी के अंदर डालते हैं या तो जब आप पत्थर पानी के अंदर डालते हो तो आप इस तरह से, जिसको आप गुजराती के अंदर वमड़, अगर देसी लैंग्वेज में स्लैंग लैंग्वेज में हम बात करेंगे तो उसे हम वमड़ कहते हैं। तो इस तरह का जो डिफ्रैक्शन है वो दिखाई देता है। और ये दूसरा यहाँ से उसने पत्थर डाला है या तो फिशिंग रॉड डाला है तो यहाँ के पोर्शन में भी ये डिफ्रैक्शन दिखाई दे रहा है और ये है इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन। सेम वे यहाँ अगर आप देख सकते हो, अगर आपके हाथ में पैर ऑफ टोंग है मतलब चिपिया है और वो चिपिया या पैर ऑफ टोंग आप कोई हार्ड आइटम के साथ में या हार्ड सरफेस के साथ में उसको स्ट्राइक आउट करते हो तो देयर विल बी अ वाइब्रेशन इन दैट पेयर ऑफ टोंग्स। सो दैट इज द वेव। इस तरह से वो वेव जैसा फीलिंग आपको आएगा वाइब्रेशन के अंदर। सो दैट इज द डिफ्रैक्शन एंड इंटरफियरेंस। होप स्टूडेंट दिस two word you understand very clearly. So scientists could not explain the phenomena of interference and diffraction, ये फिनोमिना समझा नहीं पाए थे। So they accept that idea that light possess both wave particles and particle nature, and that is known as the dual behavior. And the electromagnetic radiation have same speed. That speed is the speed of the light 3 into 10 raised to 8 meter per second. And the different type of radiation differ from one another in their wavelength. जैसे जैसे wavelength change होती है, रेडिएशन जो है वो भी चेंज होता है। स्टूडेंट यहाँ पर भी आपको ये जो मैंने पिक्चर दिखाया है उसके ऊपर से भी आप समझ सकते हो कि ये
आपका जो रडार या तो टीवी का जो एंटीना होता है, या टीवी में जैसे हम सिग्नल मिलते हैं, तो वो जो वेव्स है वो इसी तरह से वो पास होते हैं. दैट इज द नेचर ड्यूअल बिहेवियर. एंड हियर ऑल्सो दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडी विद द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. यहाँ पर भी आप देख सकते हो टू सक्सेसिव क्रिस्ट और टू सक्सेसिव ट्रॉ के बीच का डिस्टेंस, जिसे हम लैम्बडा वेवलेंथ कहते हैं, जिसके बारे में यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि डिफरेंट वेवलेंथ वाले रेज जो है वो रेडिएशन डिफरेंट होते हैं. और फिर जो उसका मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है, वो एम्पलीट्यूड से उसका हम मेजर कर सकते हैं मैक्सिमम कितने तक की वो हाइट, उसकी पीक या बॉटम में कितनी मैक्सिमम उसकी हाइट है. दैट इज द मैग्नीट्यूड. सो दिस इज द ड्यूअल नेचर. Now, when radiation interacts with matter, it display particle-like properties and wave-like property also when it propagate. So, student, the important characteristics of the electromagnetic radiation are: the first one, this consists of electric and magnetic field that oscillate in the direction perpendicular to each other and perpendicular to the direction in which the wave are traveling. ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट. ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी आपने पढ़ा था, ये जो है आपका वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस. आप देख सकते हो कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोपोगेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका जेड एक्सिस पे है, पर प्रोपोगेशन जो है वो इसी तरह से दोनों की जाती है. मतलब y axis shows the magnetic field, z axis shows the electric field, and they both are perpendicular to each other. Even they both propagate on the x-axis, so they are perpendicular to the propagation direction also. This is the meaning of this statement. So when the white light is passed through a prism, it splits into a series of color band, and that is spectrum. Student, this also you have studied when you are in the 10th class, and prism के बारे में आप अच्छे से पढ़ के आए हो. उसमें आपको पता है कि वहां पर 7 कलर्स ऑफ लाइट या 7 कलर्स ऑफ बैंड जो है वो आपको मिलता है. उसी में से आपने डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमने उसमें से पढ़ा था. So the spectrum, when the gases or vapor of chemical substance are heated by electric spark light, is emitted, and the color of the light depends upon the substance under investigation. Suppose example लेते हैं हम. आपको पता है कि सोडियम लैंप जो है, सोडियम लाइट अगर हम कहें तो सोडियम लाइट जनरली गिव्स द येलो कलर, है ना स्टूडेंट. इसके बारे में आपको पता है. सो सोडियम लाइट गिव्स द येलो कलर. उसी तरह से अगर हम देखते हैं कि पोटाशियम जो है, तो पोटाशियम के लिए हमें जो मिलता है वो पोटाशियम गिविंग द वाइट कलर, सॉरी वायोलेट कलर. पोटाशियम लाइट इज द वायोलेट कलर. ये हमें पता है स्टूडेंट. सो
So potassium, it gives the violet color. उसी तरह से अगर हम देखें तो नियॉन कलर जो है, मतलब नियॉन है वो भी हमें डिफरेंट कलर्स देता है. तो द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन कंसिस्ट ऑफ शार्प वेल डिफाइंड लाइंस, और उसी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि द स्पेक्ट्रम कंटेनिंग ऑफ लाइंस डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, दैट इज नोन एज द लाइन स्पेक्ट्रम. तो यहाँ हमें आगे वो भी पढ़ना है. सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसमें हम आगे देखेंगे कि अगर रेड कलर है तो उसमें हमें देखना है कि रेडिएशंस विथ लॉन्ग वेवलेंथ is having the low frequency and the short wavelength is having the large frequency. स्टूडेंट, अभी जो आगे की स्लाइड में हमने बात किया है, दैट आई एम जस्ट शोइंग हियर. दिस इज द व्हाइट लाइट which pass from the glass prism. You are able to see it splits into the 7 color. That is, the first one it is red, and the last one it is a violet color. So the line spectrum is this shows the pattern of lines in the spectrum of an element is the characteristics of that element and is different from those of all other elements. मतलब हर एक एलिमेंट, रेड कलर कौन देता है, क्यों दे रहा है, उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये सारी बातें हर एक लाइन स्पेक्ट्रम से हम अलग अलग पता कर सकते हैं. तो यहाँ आप देख सकते हो स्टूडेंट कि रेड कलर जो है, आगे हमने जैसे पढ़ा उसी तरह से, कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम है, और फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, जो यहाँ हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं. So when a ray of white light is analyzed by passing through a prism, it is observed that it splits up into the 7 different wide band of color from, नीचे से देखते हैं तो violet to red. This is like a rainbow. And these colors are so continuous that each of them merge into the next. यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट कि आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो. यहाँ ये एक दूसरे के अंदर जैसे मर्ज हो गए हैं, जैसे कि यहाँ रेड खत्म हुआ, रेड के साथ में तुरंत ही ऑरेंज स्टार्ट हुआ है, तुरंत येलो स्टार्ट हुआ है, मतलब यहाँ बीच में कहीं पर गैप नहीं पड़ा है. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, एंड दैट्स व्हाई दिस स्पेक्ट्रम इज नोन एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. आगे जो हमने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बात की, वो यहाँ पर से ये फिगर से आप अच्छी तरह से समझ सकते हो. आगे हमने प्रिज्म में देखा था कि वायोलेट कलर जो है वो सबसे नीचे था और रेड कलर है वो सबसे ऊपर था. तो उसका मतलब क्या हुआ कि वायोलेट कलर जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट, वो आप देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी से उसका बहुत फास्ट फ्रीक्वेंसी है. यहाँ पर ये देखो बहुत मोटे मोटे, मतलब लंबे लंबे वेव्स जा रहे हैं. यहाँ पर ये वेव्स जो है वो शॉर्ट वेव्स है. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. तो वायोलेट कलर जो है स्टूडेंट, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ही फास्टली वो नीचे आते हैं, इसलिए बैंड ज्यादा होते हैं, और ये उसकी रीजन है कि वो फास्ट मूवमेंट करते हैं
और नजदीक नजदीक होते हैं। यही बात अगर हम जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में पढ़े तो वहां हमारे पास में जो होता है वहां विजिबल रेज होते हैं, इंफ्रारेड रेज होते हैं, यूवी रेज होते हैं, तो वो सब भी एक लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के लिए अगर है तो इस तरह से उसे भी हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में गिन सकते हैं स्टूडेंट। So radio waves have the lowest frequency और the highest wavelength। जैसे मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी कम है उसका मतलब ये हुआ कि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। सो यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन थिंग, आइदर यू रिमेंबर in the frequency decreasing order or either you remember the wavelength as an increasing order. Cosmic rays have the highest frequency or the lowest wavelength। स्टूडेंट यहाँ पर आर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आर विद द लोएस्ट वेवलेंथ। The different types of radiations are arranged in the decreasing order of frequency for increasing order of wavelength are as follows। यहाँ पर मैंने आपको जो याद रखने के लिए बताया है उसमें मैंने यहाँ लिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, मतलब कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी रहेगी, तो कॉस्मिक रेज इज हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देन गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। हर एक के यूजेस जो है स्टूडेंट वो अलग अलग है। इसके यूजेस भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बट यू डोंट वरी स्टूडेंट, आई एम गिविंग यू द शॉर्टकट की to remember this all the atomic spectrum, उसके किस तरह से याद रखेंगे हम। ये आप देख सकते हो कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किस तरह से है। यहाँ भी आप देखो आगे जो आपने देखा वो सारे मर्ज हो गए हैं एक दूसरे के अंदर, और आप उसमें देख सकते हो यहाँ पर जो है वो फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ वो बताया हुआ है। तो वाइड बैंड जो है वो IR मतलब इंफ्रारेड रेज है। फिर ये जो है हमारा वो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट का एरिया बहुत ही कम होता है, ओनली 10⁻15 हर्ट्ज जो है उतना ही एरिया विजिबल लाइट के लिए होता है, और यूवी लाइट जो यूवी रेडिएशन है उसका एरिया बहुत ही ज्यादा होता है यहाँ पर स्टूडेंट। तो ये हम यहाँ समझते हैं जैसे कि 10⁻6 हर्ट्ज जो है उसके लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी फॉर ब्रॉडकास्टिंग, ये 10⁻6 हर्ट्ज पे जो यूज होता है वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी, और उसके यूजेस जो है वो ब्रॉडकास्टिंग में रेडियो वेव्स जो है उसका हम यूज करते हैं, और इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है 10⁻6 हर्ट्ज, यूजफुल फॉर द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द चैनल में हम जो न्यूज देखते हैं, वर्ल्ड न्यूज देखते हैं, जो आप क्रिकेट मैच देखते हो, कोई भी जगह से कुछ इमरजेंसी होती है तो वो बात इमीडिएटली हम तक ब्रॉडकास्ट होती है, इसीलिए इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है एंड दैट इज द रेडियो वेव्स। देन 10⁻10 हर्ट्ज पे हमारे पास में माइक्रोवेव है एंड दैट इज यूज फॉर द रडार। रडार का मतलब आपको पता है कि जनरली जब न्यूज फास्टली स्प्रेड करने होते हैं और या तो शीप के अंदर कुछ ऐसे मैसेजेस है, प्लेन के अंदर ऐसे मैसेजेस है जो डिस्टेंस या कहीं पर ऐसे प्रॉब्लम्स है वो सबको रडार के थ्रू वो मैसेज जाते हैं, तो ये है माइक्रोवेव वेव्स कहा जाता है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 10⁻10 हर्ट्ज। देन 10⁻13 हर्ट्ज वो है इंफ्रारेड रेज, एंड इंफ्रारेड रेज जो है वो जनरली हीटिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं। 10⁻16 हर्ट्ज यूवी रेज जो सन की लाइट में से आते हैं और एब्जॉर्ब होते हैं ओजोन लेयर के अंदर, तो वो है 10⁻16 हर्ट्ज यूवी रेडिएशंस।
यहाँ पर ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, अबव 2R मीन्स ये जो इंफ्रारेड रेज और यूवी रेडिएशन, ये दो जो रेडिएशन है स्टूडेंट, वो दोनों रेडिएशन जो है वो आयोनाइज एटम से निकलते हुए हैं और इसीलिए वो सेल को डैमेज करते हैं। एंड दैट्स व्हाई यू मे बी नो दैट ये यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास में ओजोन लेयर है, और अगर ओजोन लेयर डिप्लैट होता है तो उसकी अर्थ के ऊपर बहुत खराब इफेक्ट हो रही है। तो दैट इज due to this infrared rays and UV radiations are possible because of the ionized atom, and the effect is to damage the cell. And last one, as I said, 10 raised to 15 hertz पे विजिबल लाइट रेज है, जो एरिया बहुत ही कम एरिया है, दिस इज द विजिबल लाइट रेज। अब स्टूडेंट इसके यूजेस और फ्रीक्वेंसी आपको याद रखनी है, तो उसकी एक मस्त शॉर्टकट की बता रही हूँ आपको। स्टूडेंट यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, आपको लगा होगा कि मैडम ये क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा है, मैं कुछ यहाँ आपके लिए लिख रही हूँ। तो ये है आपकी शॉर्टकट की, आपके सारे ये रेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में याद रखने के लिए। तो यहाँ लिखा है मैंने गाड़ी, गाड़ी कौन सी गाड़ी है, कौन सी कार है आपके पास में, एक्सयूवी कार है स्टूडेंट। सो गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेट, मतलब आपको जितने पैसे की आपके पास में जरूरत, आपके पास में है अवेलेबिलिटी, उतने ही पैसे में आपको एक्सयूवी कार मिल रही है, ये इसका मतलब है। स्टूडेंट आप सोचोगे मैडम ये शॉर्टकट की बताने के लिए अभी ये मुझे गाड़ी खरीदने जाने की क्या जरूरत है। नहीं स्टूडेंट, ये देख सकते हो, गाड़ी का मतलब है यहाँ पर जी फॉर गामा रेज, एक्स फॉर एक्स रेज, U for UV rays, U for UV rays, I for infrared rays, M for microwave rays, and R for radio waves। तो ये आप देख सकते हो, गामा रेज से लेके आप रेडियो वेव्स तक जाओगे तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, जो अभी मैंने आपको आगे उसमें बताया स्टूडेंट। तो गामा रेज, एक्स रे, यूवी रेज, और ये जो है बहुत ही कम एरिया हमारा, वो है विजिबल लाइट रेज। अब आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि मैं ये क्या बताना चाह रही हूँ। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ अगर हम देखें, सो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज फ्रॉम gamma rays to
रेडियो एक्टिव रेज। एंड अगर उससे उल्टा अगर हम बोले स्टूडेंट, तो वी कैन से दैट वेवलेंथ की बात करें तो स्टूडेंट वेवलेंथ इंक्रीजिंग फ्रॉम गामा रेज टू रेडियो एक्टिव रेज। तो ये बात आपको इजीली पता चल गई है, अभी आपको याद भी रह जाएगी। तो अच्छी तरह से इसे आप मेमोराइज कर लोगे, ताकि आगे जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर पढ़ा था और ड्यूअल बिहेवियर के बारे में जो हमने समझा है वो अच्छी तरह से याद हो जाए स्टूडेंट। एंड नाउ thank you so much, student, for giving me such a good response, good support, and I am always welcoming your comments and your whatever the problems are there. I am always ready to give the solution. So thank you, and हाँ student, please like and subscribe my channel. वो आपको भूलना नहीं है।